clearing prelims is just a game of luck. Everything under the sun is asked in UPSC prelims. I know these are controversial statements, but this is the everything that you hear around you from your relatives, from your colleagues, even your student peer group. The prelims एक game of luck बन चुका है. इसमें से अगर आपको क्लियर होता है, ये जस्ट एक आपका वो बन गया, एक टिकट टू मेंस बन गया. ये तो prelims क्लियर होना with knowledge is very tough. So, hello students, welcome to Mentor Sir. I'll give a brief introduction about myself before starting this lecture. My name is Abhishek Goswami and I have written 3 UPSC mains as well as cleared forest service cutoff almost twice. And I have consistently scored above 110 plus in UPSC prelims. So as you can see in my mark sheets, I have scored 118 marks. I have scored 118 marks, which is well above cutoff. Here cutoff was only 88 marks, which is about 30 marks above the cutoff. And here as well, I have scored in last 2024 CSE prelims, I have scored 109.28 marks and also 105 in CSET, which is well above the cutoff of general category. So as you can see that if prelims was a game of luck, consistently scoring 110 plus would have been luck. But I want to tell you that here that you can also do the same thing with right guidance. I'll start here with a story. As you can see in this picture, there are 2 pictures. In one picture, Arjuna is standing there. उनके पास भी same weapons हैं. In second picture also, same Arjuna is standing. They are trying to aim towards their target. UPSC में भी यही होता है. We all have the same sources. हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, modern history spectrum पढ़ते हैं, etc. But one person is scoring 120, 100 plus in prelims. उनका mains भी हो रहा है, interview भी हो रहा है. But there are many able students जो अच्छा पढ़ रहे हैं, hard work कर रहे हैं, दिन में 10 hours, 12 hours clock कर रहे हैं. Still, they are not able to clear prelims for 4 or 5 attempts. I've seen many जो 5 attempts तो prelims नहीं हो रहा. They are stuck in this 70 to 80 range. They are the students जो first loop में फंस चुके हैं. They have the right weapons, but they lack right guidance. So they are always missing the target. तो 4 plus years उनको इसमें लग जाते हैं. But when you see the second, here, same person, he has right guidance. और उनके अपने focus और hard work से he is able to hit the target. And they can easily hit the bullseye जो है UPSC prelims में, जो आपका अभी मई 2026 में होगा. They can easily clear that. And they can easily score 100 plus with right focus. अब जब आपका अच्छा मार्क्स आता है, you always have less tension because आप मेंस के लिए better prepared हो सकते हो. अगर आपका मार्क्स वहां पे स्टक हो गया 90 to 95, which most candidates are stuck even after preparation. So what happens is आपको लिस्ट की वेट करते हो कब रिजल्ट आएगा. You waste almost 15 days, right? और आपका नहीं होता, then you have 1 year which you again have to give, which is also a tiresome process. So here in this lecture I'll try to tell you 2-3 things. First is knowledge. Knowledge is supreme. अब UPSC prelims में there are 2-3 things जो लोग बात करते हैं. First is elimination techniques, right? Elimination techniques. Second is knowledge. Now there is a debate कि prelims में elimination से काम चल जाता है. But I'll also always say if जो knowledge है वो आपका king है always. Without knowledge you cannot clear prelims. Elimination is like queen, right? अब चेस बोर्ड का एक इसके अंदर स्टोरी बता रहा हूँ. किंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. नॉलेज जो आपकी क्वीन है, हाँ उसका चेस में इंपॉर्टेंस होती है, बट किंग इज द सुप्रीम थिंग. आप नॉलेज के साथ बिना आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते. तो यू रिक्वायर हार्ड वर्क. देयर आर मेनी पीपल ऑलमोस्ट लाइक जो यूपीएससी सर्कल में आते हैं, दे हैव नॉलेज बट स्टिल एलिमिनेशन टेक्निक्स में भी वो पढ़ लेते हैं, बट दे ट्राई कि ट्रिक्स के ऊपर फोकस करते हैं. ट्रिक्स इज द मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड इन यूपीएससी सर्कल. आई थिंक सो यू शुड कम आउट ऑफ इट. सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड द examiner's mindset. So you always have to understand the examiner's mindset. What I'll tell you here is, for example, आपने 12th में you may have applied for CUET, JEE, NEET. What you did was आप PYQ लगाते थे. Then you understood कि ये examiner का mindset है, इस topic से ये question पूछ रहा है. I should give proper attention to this topic. I should ignore this topic. यहाँ इस हिसाब से question पूछ रहा है, जो आंसर है probability उसकी टिक करने की आपकी ज्यादा हो जाती है. But what has happened in UPSC is there is lot of clutter around you. बहुत कंटेंट आपके पास, आपको सोचते हो उसको पढ़ते रहते हो. आपके करंट अफेयर मैगजीन्स बहुत ज्यादा हैं, आपके पास मल्टीपल बुक्स हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए. तो यू कम हियर नाउ, यू ऑलवेज मिस द टारगेट.
अगर आप यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट समझो एंड राइट गाइडेंस है, देन यू कैन अचीव दिस. सो इन नाउ फोर्थ कमिंग अभी जो बता रहा हूँ आपको, इसमें आई ट्राई कि आपको सेम जो क्वेश्चन है यू हैव टू अटेम्प्ट विद मी. आई गिव यू टाइम, मेरे साथ साथ आप रीड करो एंड थिंक कि जो मैं सोच रहा हूँ, है ना, एग्जामिनर का माइंडसेट के हिसाब से, है ना, जब मैंने जो एग्जाम में ट्राई किया कि मेरे को जो वर्क किया, कैन यू अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चंस. जो आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, क्या उसको किसी और तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है विद राइट नॉलेज एंड एज वेल एज राइट माइंडसेट एग्जामिनर का समझने से. So let's start with first question, which is everyone's favorite, that is polity subject. So here it says is, with reference to the Indian polity, consider the following statements. The governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of powers and duties of his or her office. Second statement is, no criminal proceedings shall be instituted or continued against the governor during his or her term of office. Third statement is, members of a state legislature are not liable to any proceeding in any court in respect to anything said within the house. Which of the above statements are correct? Now here important is correct और incorrect भी आप लोग देखना है. ये मेजर मिस्टेक होता है, दे ट्राई के यहाँ इनकरेक्ट लिखा होगा यूपीएससी में, उनको करेक्ट मार्क आ जाते हैं एंड दे लूज 2 मार्क्स. ओके, वेर यू रियलाइज इज, यहाँ स्टेटमेंट्स सेम टू सेम लक्ष्मीकांत से कॉपीड है. तो जो आपका ये मेन सोच है ना लक्ष्मीकांत, दैट शुड बी रिवाइज वेरी प्रॉपरली. ठीक है, अब यहाँ देखो आपको बार बार यू फॉलो डीडी बासु सुभाषिका से विच इज रिकमेंडेड. आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. गवर्नर वाले चैप्टर से इट इज स्पेसिफिकली मेंशन जो गवर्नर की इम्यूनिटीज में, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज पावर्स और ड्यूटीज ऑफ हिज फंक्शन. ये गवर्नर की पावर है, राइट, और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है. अच्छा, अब यहाँ पे पीपल ट्राई ट्रिक्स लिखना, तो कहेंगे नॉट है तो मे बी ये गलत हो सकता है, बट नो, हियर दे विल फेल. You understand how? Because knowledge is supreme. यहाँ पे रिवीजन, राइट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक में लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस आ रहे हैं. लाइक गवर्नर हो गया, आपका इंडियन पार्लियामेंट हो गया, देयर आर द मेजर चंक्स या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज. यहाँ यूपीएससी इज फोकसिंग मोर, है ना. अब यूपीएससी में यू विल नॉट फाइंड अ क्वेश्चन अबाउट सिटीजनशिप, है ना. तो यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट से लेके एंड तक रीड करो लक्ष्मीकांत, यू विल वेस्ट योर टाइम. आपको राइट स्ट्रैटेजी से रीड करना लक्ष्मीकांत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. That we will teach in our PTP as well, Prelims Training Program. That here I am telling you is, even second statement mein, he says no criminal proceedings shall be instituted or continued against the governor during his term of office. Again, this is one of the immunities to governor. Up third is, member of state legislature are not liable to any proceeding in any court in respect of anything said within the house. This is also extreme statement, but you know, जो parliamentary privileges हैं, जो parliamentary privileges हैं, उनके अंदर इट इज प्रॉपरली मेंशन्ड दैट टू प्रिवेंट द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को दे आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग. अगर वो कुछ भी हाउस में कहते हैं, कोई भी वोट देते हैं, उनको उनके अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती उसके बेसिस पे, सो दैट वो फ्री स्पीच पार्लियामेंट में कंटिन्यू रहे, इवन इन स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल. सो all the three statements are correct. All the three statements are correct. That is how you have to think about this question. आपको सोचना है पॉलिटी का क्वेश्चन में लक्ष्मीकांत ने कौन से टॉपिक से पढ़ा है, राइट. यू हैव टू रिमेंबर कि हाँ, अब ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वाला आपके माइंड में आना चाहिए. यू कैन नॉट जस्ट रैंडमली थिंक इट, उसको कॉन्टेक्स्ट में सोचना है, ये कौन से चैप्टर से आया और उसके अंदर कहाँ ये मेंशन्ड है. आपका माइंड ऐसे वर्क करना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नहीं तो थर्ड स्टेटमेंट में मोस्ट पीपल वुड हैव गॉन रॉन्ग, राइट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Minister of State with independent charge, Minister of State with Deputy Minister. See, UPSC wants you to know कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वो ट्रैप्स करेंगे. अब यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, दैट वी डू रीड कि हाँ, जो मिनिस्टर्स हैं, आप जो अपना गवर्नमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में देयर इज रेफर दैट क्या जो मिनिस्टर्स हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर में कैटेगराइज किया हुआ है. हाँ, बट दे आर नॉट कैटेगराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. So this thing, according to the Constitution of India, the Constitution of India does this. ये बहुत स्पेसिफिक होता है, राइट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे नहीं, ये गवर्नमेंट रूल्स हैं जिसके अंडर ये क्लासिफिकेशन है. तो दिस स्टेटमेंट कम्स रॉन्ग, राइट. सेकंड स्टेटमेंट इज, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा. नाउ 15%, दिस इज अ डेटा मेंशन्ड है यहाँ पे. आप मोस्टली व्हाट हैपेंस इज, अब डेटा को मानोगे गलत है. नो, this is mentioned in 91st Constitutional Amendment Act.
So it says that total number of ministers should not exceed 15%. ये क्यों लाया गया था? ये एंटी डिफेक्शन वाली आपकी जो चैप्टर है उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. क्या होता था दैट आया राम गया राम वाला द इशू था कि कोई भी मिनिस्टर आता था, कोई भी MP MLA आता था, ही वांटेड कि मुझे मिनिस्टर बना दो, है ना, अगर उसको कोई हेल्प करते थे. सो 91st अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट उसको लिमिट कर दिया, राइट. तो उनको 15% कर दिया उन्होंने. तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज 2003 का ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, दैट कम्स करेक्ट. इससे क्या इंपॉर्टेंट है दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स उसके अंदर क्या क्या मेंशन्ड है वो आपको पता होना चाहिए. लाइक 42nd अमेंडमेंट, इट्स नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. 44th अमेंडमेंट हो गया, ठीक. 73rd 74th अमेंडमेंट रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट्स हो गया. 91st अमेंडमेंट हो गया, राइट. दीज शुड बी नोन. 52nd अमेंडमेंट ऑफ एंटी डिफेक्शन, दीज यू शुड नो. अब ऑल्सो दैट यहाँ पे एक वो है डेटा में चेंज. अगर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें सेम प्रोविजन है पर वहां पे मेंशन है 10%. वहां पे क्या मेंशन है? 10%. अगर मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना होगा आई वुड फ्रेम द सेम स्टेटमेंट और वहां दिल्ली की असेंबली मेंशन कर दूंगा, मैं वहां लिख दूंगा 15%. बट नो, दैट वुड बी रॉन्ग. दिल्ली में 70 अगर आपके MLAs हैं उसमें से सिर्फ 10% मीन 7 ही मिनिस्टर्स बन सकते हैं, राइट. तो अगर लोकसभा की बात करें 15 है, तो ये आपको याद रखना चाहिए. इतिहास दोनों में से करेक्ट क्या है? तो आंसर क्या होगा आपका? 2 ओनली. आंसर विल बी 2 ओनली. ओके, नेक्स्ट इज यू सी द ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में आई कैन डिवाइड 2-3 डायमेंशंस में. ज्योग्राफी में एक तो गया कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, लाइक आइसोटोप का क्वेश्चन आ गया, एंड अर्थक्वेक से क्वेश्चन आ गया आपके. सेकंड इज जो आपका मेंस के भी ओवरलैप करता है, ठीक है. सेकंड इज योर इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैपिंग. मैपिंग के ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन आप पाओगे उसमें, इंक्लूडिंग योर वर्ल्ड मैपिंग एज वेल एज योर इंडिया मैपिंग, राइट. तो मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे एक तो मैपिंग में भी आपको ध्यान देना, जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट न्यूज में आ रहा है, एक वो चीज आ सकती है, राइट. सेकंड इज योर, अगर कोई चीज जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स हो गया या एंडीज का इसमें क्वेश्चन आया है, राइट. एंडीज माउंटेन, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंडीज इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. तो इसको यूपीएससी ज्यादा फोकस दिया है तभी. तो दिस इज 2025 का क्वेश्चन ओनली. It says Andes mountain passes through how many types, how many of above countries? Only 2, only 4, only 3, only 5. अब यहाँ पे without knowledge you cannot do anything. And this is the new normal for UPSC that they put such statements. Only 1, only 2, only 3 since 2023. अब यहाँ पे mapping is very important. Your world atlas. So you have to see कि Andes Cordillera कहाँ पे मार्क करते हो आप. See यहाँ पे ये वेनेजुएला से स्टार्ट होता है. Your next country is Colombia. Then your Ecuador. ठीक है. 1, 2, 3, Peru 4, Chile 5, Bolivia 6, Argentina is your 7th country, right? So important is that not only कौन सी country से पास होता है, but number of countries is also very important. Because UPSC has asked one time कि Western Ghats passes through 6 states, है ना, Himalayas passes through 4 states. तो number is also important. तो आपको PYQ इसीलिए important होता है that you should know. यहाँ पे एक और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था, Andes mountain passes through 7 states और 7 कंट्रीज और 6 कंट्री लिख देते हैं. तो आपको पता होना चाहिए सही है या गलत है, राइट. सो एंडीज आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, एज आई टोल्ड यू के. और इसमें से हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी, वो आपको पता होना चाहिए. दैट इज माउंट अकानागुआ. ऐसे भी बना सकते क्वेश्चन वो कि माउंट अकानागुआ बिलोंग्स टू विच वन, कहाँ पे आता है वो, दैट एंडीज में पड़ता है या रॉकीज में पड़ता है. ऑल्सो माउंट अकानागुआ कहाँ पे है? इट इज इन चिले. सो इट सेज एंडीज रेंज पासिस थ्रू 7 कंट्रीज जो हमने मार्क कर लिया ऑलरेडी. पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया, चिले, इक्वाडोर एंड अर्जेंटीना. तो ये क्या बन जाता है आपका ऑप्शन में? बोलिविया इज करेक्ट, कोलंबिया इज करेक्ट, वेनेजुएला इज करेक्ट, इक्वाडोर इज करेक्ट. पर ब्राजील से नहीं पास होता है एंड ना ही ये पैराग्वे से पास होता है, करेक्ट. सो दीज टू कम एज रॉन्ग ऑप्शन. तो आंसर विल बी 1, 2, 3, ओनली 4. ओनली 4 विल बी द आंसर. सो मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे. That is how you have to go about the mapping questions. Okay, I hope so you have got this question correct अगर आप मेरे साथ solve कर रहे हो. Okay, so next question will be also इसमें एक और question पूछा जा सकता है, that statement आ सकती है that Andes is the longest mountain range in the world. So you will think that is an extreme statement, but that is a right statement. तो UPSC deliberately ये चीज आपको डालेगा statement में, right? तो इसलिए right knowledge is important और mapping को structured way में पढ़ना is very important, correct? Now economic questions.
Before starting economic questions, I would like to tell that इकोनॉमी में प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट करेक्ट होने का भी चांस होता है, जो लाइक जो ट्रैप्स पढ़ाते हैं बाकी जगह. आई विल टेल यू यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट करेक्ट होने का चांस होता है. सो हियर व्हाट विल डू इज वी हैव टू गो बाय कंसेप्ट्स. यहाँ पे कोई रट्टा नहीं चलेगा इकोनॉमी में, टोटल कंसेप्ट्स. इट सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये करेक्ट पूछा हुआ है. कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, अब जब आर्टिकल हम बजट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट बजटिंग आर्टिकल 112 के अंदर आता है, राइट. 112 उसके अंदर दो तरह के आते हैं. एक होता है कैपिटल बजट एंड सेकंड इज रेवेन्यू बजट. कैपिटल बजट है रेवेन्यू बजट, राइट. आई राइट दिस डाउन, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट. अब कैपिटल बजट में क्या आता है? कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. सिमिलरली रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. अब उसके अंदर क्या क्या अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, दैट यू शुड नो. व्हाई? बिकॉज एक तो ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है इन 10 मार्कर्स, और ऑल्सो ये प्रीलिम्स में लास्ट ईयर पूछा गया है. तो यूपीएससी इज रिपीटिंग दिस टॉपिक. एंड बिफोर इवन आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू दैट दिस क्वेश्चन इज, ये जो है आपके, यू डू रीड मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट नोट्स व्हिच इज गुड, बट जो बेसिक चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज योर एनसीईआरटी. दैट इज योर एनसीईआरटी. जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है, चैप्टर 5 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, वहां से क्वेश्चन हैज बीन पिक्ड. तो यूपीएससी जो अपना बेसिक रखेगा, दैट इज एनसीईआरटी. हर एक जो क्वेश्चन होगा, आई टेल यू द सोर्स. आई विल नॉट टेल यू कि आप ये सोर्स पढ़ लो, ये कोचिंग का पढ़ लो. आई टेल यू कि जो फाउंडेशन है आपका, दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. दैट इज फाउंडेशन क्या आपका? एनसीईआरटी. सो हियर सी कैपिटल रिसीट्स जो है, कैपिटल रिसीट में क्या क्या आता है? कैपिटल रिसीट की एग्जांपल इज योर डिसइन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जांपल आपने ओएनजीसी या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट कंपनी पीएसयूज है, उनको डिसइन्वेस्ट कर दिया, तो आपके पास 100 करोड़ रुपीज आया. दैट इज योर कैपिटल रिसीट. और वो आपका रिडक्शन इन एसेट कर रही है, बिकॉज अब गवर्नमेंट का फॉर एग्जांपल वहां पे ओएनजीसी का एक प्लांट था, अब वो एसेट था गवर्नमेंट का, वो उन्होंने बेच के उनको 100 करोड़ आ गया, बट 100 करोड़ के साथ उनकी रिडक्शन हो गया इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. वन थिंग ऑल्सो इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी. हाउ? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने लोन लिया, उसने गवर्नमेंट ने 10 करोड़ का लोन ले लिया कहीं से, तो उनके हमें लगेगा कि हाँ उनके पास पैसा आ गया, बट दैट इज अ लायबिलिटी बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू रिटर्न द 10 करोड़ लोन विद इंटरेस्ट, राइट. इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी एज वेल एज इट कॉजेज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हिच इज करेक्ट. अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो भी आपको पता होना चाहिए. इट रिड्यूसेस द लायबिलिटी एंड इट एनहांसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या एग्जांपल आ गया? स्कूल बिल्ड किया आपने, हॉस्पिटल्स बिल्ड किए, वो गवर्नमेंट के एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, राइट. तो इसके अंदर बोरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स. दिस इज करेक्ट, आपको एग्जांपल से बता दिया. नाउ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. नो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द गवर्नमेंट लोन्स डू नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ, जहां रेवेन्यू रिसीट्स है ना, दे आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स. इंटरेस्ट रिसीट जो पार्ट है आपका, दे आर पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू रिसीट्स. So they do not create a liability for the government. Government is not liable to return that interest. For example, आपने लोन दिया, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट है, आपने 100 रुपीज किसी को दिया, 100 रुपीज के ऊपर उसने आपको 10% लोन दिया, मतलब 10 रुपीज आपको लोन दिया आपने, 10% का इंटरेस्ट है आपके पास. जो वो 10 रुपीज है, जैसे आपको 100 का लोन आपने किसी को दिया, उसका 10% में दिया आपने, तो उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा आपको सालाना? फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज आया, द 10 रुपीज गोज टू यू. Now you don't have liability to return the 10 rupees to your friend, क्योंकि वो आपका रेवेन्यू रिसीट हो गया. So it does not create a liability. You have to be very conceptual in there. Answer will be 1 and 2. और करेक्ट पूछा, अगर इनकरेक्ट पूछा होता तो ओनली 3 होता, राइट. तो ये आपको माइंड में रखना है. तो यहाँ पे एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू ऑलवेज बी कंसेप्चुअल इन योर इकोनॉमी. ना अगेन सी दिस न्यूमेरिकल का जो है, यूपीएससी इज ट्राइंग के यूपीएससी इकोनॉमिक कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स बनाए जाए. So it is based on the basic concept of again government budgeting. यहाँ पे revenue expenditure, fiscal deficit, every term has been included है. This question may seem tough, but this is very easy question if you just know the concepts well. आपको depth में concept पढ़ा आपने, right? इसे suppose the revenue expenditure is 80,000 crore and revenue receipt is 60,000 crore, right? दो दे दिए वाला. And government budget also shows borrowing of 10,000 crore and interest payment of 6,000 crore. Which of the following is correct? Okay, it says revenue deficit is 20,000 crore. So as we discussed, what is revenue deficit? Revenue deficit is nothing but revenue expenditure minus revenue receipts. Revenue expenditure minus revenue receipt. Now it says revenue expenditure here is 80,000 crore minus revenue receipt here is 60,000 crores.
So what will be your answer? Will be 20,000 crores. So first statement is correct. Now second statement is fiscal deficit is 10,000 crore. So what is fiscal deficit? Fiscal deficit is total expenditure minus total receipt. मतलब गवर्नमेंट को जितना पैसा एक साल में स्पेंड करना है माइनस जितना उसको पैसा आ रहा है, दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट. सो गवर्नमेंट बजटिंग में क्या होता है, जनरली गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड 100 रुपीज, बट उनको जो टैक्सेस के थ्रू पैसा आता है एक्सेट्रा, जो जीएसटी के थ्रू आता है या कॉर्पोरेट टैक्सेस या पर्सनल टैक्सेस, दैट कम्स आउट टू बी 60 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, है ना. ये एग्जाम्पल से जैसे मान लो आपको सारा 60 रुपीज आया, तो 40 रुपीज एक्स्ट्रा माइनस हो गया. एक्सपेंडिचर इज दिस वन, रिसीट इज दिस, तो गवर्नमेंट हैज टू मेक दिस जीरो. ये 40 रुपीज कहाँ से आएगा? दिस 40 रुपीज कम्स थ्रू योर बोरोइंग. This 40 rupees come through your borrowing. Borrowing की आपने एग्जांपल पढ़ी होंगी, your open market operations, government securities, foreign borrowing, etc. तो ये 40 रुपीज उनको बोरो करके फिस्कल डेफिसिट आपका जीरो करना है एक साल में, है ना. तो इनडायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग. इफ यू नो दिस कंसेप्ट, तो उन्होंने बहुत स्मार्टली इसको लिख दिया है, द गवर्नमेंट बजट आल्सो शोज बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज, और दिस इज एक्चुअली अ फिस्कल डेफिसिट. सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. एक कंसेप्चुअल है, इसमें कोई भी मैंने फॉर्मूला इज वेरी इजी, राइट, मैंने से किया है, बट दिस इज अगेन कंसेप्चुअल. दिस वाज नॉट अ न्यूमेरिकल, दिस वाज अ कंसेप्ट. नाउ इट सेज इंटरेस्ट पेमेंट इज 6,000 करोड़ फॉर दैट ईयर. तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो पुरानी गवर्नमेंट ने पैसा लिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर दो फिस्कल डेफिसिट से, तो इस गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट. तो यहाँ पे हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या है? वी हैव फाउंड आउट दैट टू बी 10,000 करोड़ रुपीज, और इंटरेस्ट पेमेंट इज 6,000. तो आंसर विल बी 4,000 crore rupees. This is again correct. It has asked correct, so 1, 2 and 3 is correct. You see, government budget and economy, again NCERT class 12th के NCERT से you have found 2 questions. Both may look difficult, but again foundation strong है, you can solve this very easily. Right. So we'll go by the next question. The next question I chose यहाँ पे is about science and tech. Science and tech में दो चीजें होती है, वन इज अदर योर साइंस बैकग्राउंड और नॉन साइंस बैकग्राउंड. यू हैव टू रीड साइंस, बिकॉज जो वो साइंस है दैट इज बेसिक साइंस. यहाँ पे जो साइंस है दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड साइंस, बिकॉज यहाँ पे यू हैव टू रीड थीम्स पढ़नी पड़ेंगी, लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया आपका, सुपर कंप्यूटिंग हो गया, स्पेस इकोनॉमी, है ना, योर डिफेंस सेक्टर में जो हो गया आपका साइंस पार्ट, तो दैट हैज टू बी रेड. तो उसके बेसिस पे आपको प्रीलिम्स का और मेंस का पार्ट होगा. सो हियर इफ यू फाइंड आउट इज, ये आपने हो सकता है ये चीज ना पढ़ा हो मेजर राना चिप के बारे में, but this was in news at that time. ठीक है, it says is it is expected that Majorana one chip will enable quantum computing. Yes, एक quantum computing की एक one of the good examples थी, like a breakthrough in quantum computing. तो इसने जो major topic है that is quantum computing. If you would have read about quantum computing that time, आपने इसका MCQ भी solve कर सकते थे, उसको करा होगा उस टाइम पे, because that was in news too much उस टाइम पे. तो it has been introduced by Amazon Web Service. No. It was introduced by Microsoft. This was the only fact that you would have known. Simply अगर इसको एलिमिनेट कर दो ना, ये बड़ा easily found out कि 1 and 3 सही है. Even ये डीप लर्निंग, सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये आपको पता होता है नहीं पता होता है, that is not the part. अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनर का माइंडसेट, जो भी ये लिखा होता है ना, that such and such thing has been introduced by something, है ना, तो यहाँ पे यूपीएससी हैज 90% चांस कि यहाँ पे वो गलती करेगा. 90% चांस यहाँ पे गलती करेगा. यू कैन चेक योर पास्ट ईयर पेपर्स, आप जहां पे इंट्रोड्यूस वर्ड लिखा हुआ है ना, यू विल फाइंड वहां पे यूपीएससी एग्जामिनर गलती करेगा. लाइक आई थिंक वन क्वेश्चन वाज दैट आई थिंक गन पाउडर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर. दैट क्वेश्चन वाज आल्सो रॉन्ग. तो वहां पे इंट्रोड्यूस वर्ड से वो पता लग जाता कि हाँ, यहाँ पे यूपीएससी एग्जामिनर का गलती करने का ज्यादा चांस है. दैट यू कैन डू. तो आंसर विल बी 1 and 3. Okay. So next question is, which of the following is the best example of repeated fall in the sea level giving rise to present day extensive marshland? So इसके अंदर this में you reading newspaper पढ़ सकते हो, यहाँ आपने पढ़ा होगा, but this can be a random question. अच्छा, यहाँ पे what happened was कि एक तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि मार्शीलैंड कौन सा इसमें मैंग्रोव है, मैंग्रोव ग्रोज इन मार्शीलैंड 1 हो गया. स्वाम्पी एरियाज इन मार्शीलैंड, ठीक है. रैन ऑफ कच्छ है, वो भी एक मार्शलैंड है, राइट.
तो सॉल्ट प्लेन्स भी मार्शलैंड है, तो वहां से ऑप्शन एलिमिनेट होना मुश्किल हो जाता था। तो इट सेज रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, तो आपको देखना है कि कौन सा कोस्ट के पास है, ठीक है, आपको ये भी उसमें दिमाग लगाना है। एंड फिर भी अगर कोई नहीं सॉल्व हो रहा ना, यू हैव टू यू आल्सो हैव वन अदर वेपन, दैट इज रीडिंग हिंदी। इफ यू जस्ट रीड हिंदी ना, यहाँ पे एग्जामिनर ने खुद से गलती कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर के से पुनर्निर्धारित गिरावट का, यहाँ लिखा, जिससे वर्तमान समय की स्थिति कच्छ भूमि उत्पन्न हुई। कच्छ भूमि, कच्छ भूमि इज रन ऑफ कच्छ। इनडायरेक्टली जब हिंदी ट्रांसलेशन उन्होंने इसका किया तो कच्छ भूमि उसके अंदर आ गया। सो यहाँ आंसर था रन ऑफ कच्छ। सो दिस इजीली गिव्स यू 2 मार्क्स। समटाइम्स यू हैव टू बी स्मार्ट, यू आल्सो हैव टू रीड हिंदी। अगर आपको इंग्लिश में कोई चीज लग रहा टफ है, यू मे फाइंड सम और अदर क्लू इन योर हिंदी, दैट इज, यहाँ पे स्मार्ट वर्क है, दैट इज व्हाट यू कैन डू। नहीं तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर देते कि यार नेगेटिव ना चले जाए। अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली होती, यू कुड हैव इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, it says which of the following is or are correct inference from isothermal maps in the month of January? See, this is question from geography. अब geography से I told you एक तो conceptual questions आते हैं like world geography, Indian geography, and then your mapping. Mapping से I told you 7 to 8 questions आते हैं, very important. Now conceptual जो geography है, earlier वो कम questions आते थे, but recent times they have increased, right? अब यहाँ पे it is totally concept based, totally, और geography is scientific subject, right? तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, just like economy. So it says isotherms deviate to north over ocean and to south over continent. In month of January उसने बोला है, ठीक है, that is very important keyword. तो क्योंकि in month of January क्या होता है, that आपको पता होना चाहिए, in month of January अर्थ की पोजीशन क्या है। अब यहाँ पे जो आपका सन है, that is overhead over tropic of Capricorn, that is overhead over tropic of Capricorn. जब आप सन बनाते हो, सॉरी अर्थ बनाते हो, तो यू नो सन के बेसिस पे दैट जो आपका sun rays that will be directly overhead the tropic of Capricorn. So what will happen in northern hemisphere is, northern hemisphere में there will be winter, there will be winter. और यूपीएससी ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, this is actually related to summer solstice and winter solstice and equinox वगैरह, तो इस कंसेप्ट से बेस्ड है। तो आई नो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहां विंटर है। अब आइसोथर्म्स का कंसेप्ट क्या है, इफ आई ड्रॉ अर्थ, तो मुझे आइसोथर्म्स इज लाइन ज्वाइनिंग इक्वल टेम्परेचर, तो आइसोथर्म जनरली शुड हैव बीन लाइक दिस, लैटिट्यूड को मैच करना चाहिए। बट व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, कभी कॉन्टिनेंट जो है और ओशन के कारण जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसके कारण आइसोथर्म ज्यादा डेविएट करते ऊपर, ज्यादा डेविएट कर जाते नीचे। अब आपको एक इसमें कंसेप्ट पता होना चाहिए साइंस का, दैट वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट, तो वाटर को इजीली गर्म करना और इजीली ठंडा होने नहीं होता, उसको टाइम लगता है। वेराज जो अर्थ है, जो सॉइल है, वो इजीली बहुत जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है। अब उस कंसेप्ट पे आप सोचो, then when isotherms deviate to north over oceans, here what will happen is, यहाँ पे ठंड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ठंड है, राइट, बट जो आइसोथर्म्स है यहाँ पे 10 डिग्री आइसोथर्म, यहाँ पे एक बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 10 डिग्री आइसोथर्म है नॉर्थ अमेरिका के पास, करेक्ट। तो नॉर्थ अमेरिका से यहाँ ऊपर क्या है, देयर आर वार्म ओशन करंट्स, सो आइसोथर्म विल डेविएट फ्रॉम टू नॉर्थ, बिकॉज जब यहाँ पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे ठंड हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड है, बट ऊपर वार्म है, तो 10 डिग्री ऊपर मिलेगा आपको, यहाँ 6 डिग्री मिलेगा, तो इसलिए नॉर्थ में डेविएट हो जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन may look very tough, but I'll tell you this question is again from your NCERT. See, this is mentioned in your NCERT, distribution of surface air temperature in month of January. जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया नॉर्थ अमेरिका का, इफ यू मार्क अ आइसोथर्म हियर, यहाँ मार्क करते हो, ये आपको 10 डिग्री मिल गया, बट आपको 10 डिग्री यहाँ नहीं मिलेगा, बिकॉज 10 डिग्री जो है अर्थ जो सॉइल है वो तो जल्दी 10 डिग्री पे आ गई, बट ये अभी फिर भी 15 डिग्री पे है फॉर एग्जाम्पल, है ना, इसका टेम्परेचर रिड्यूस नहीं हुआ अभी, इवन दो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है विंटर, वाटर का टेम्परेचर इतना जल्दी रिड्यूस नहीं हुआ है, बट वी नो फ्रॉम ओशन करंट इज, यहाँ पे ओशन करंट्स आर लाइक जो ग्लोबल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करते हैं, तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम चलती है और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, यहाँ पे क्या है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो वो उसके कारण यहाँ अभी भी वार्म है, तो आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ आपको 10 डिग्री मिल जाएगा, राइट, यहाँ आपको टेम्परेचर 10 डिग्री मिल, तो आइसोथर्म ऊपर को डेविएट हो गए। बट सेम कंसेप्ट से नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे आइसोथर्म्स डेविएट क्यों हुए कॉन्टिनेंट पे, साउथ पे, ये आपको माइंड में सोचना है इफ यू आर डूइंग द क्वेश्चन विद मी। तो अगर आपने इसको एनालाइज किया होता उस टाइम पे, यू वुड हैव इजीली अंडरस्टूड दैट आइसोथर्म्स डेविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशन, यस दे इन मंथ ऑफ जनवरी उसने बोला, और नॉर्थ की तरफ हो रहे हैं डेविएट ओशंस में, और कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट।
सेकंड स्टेटमेंट में उसका रीजन जो था ना, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ. एक्चुअली इसमें उसने उसी कंसेप्ट को जो है टोल्ड यू ना, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक वार्म होती है, उसके कारण आइसोथर्म्स ऊपर बेंड होते हैं. उसने एक गलती कर दी दैट दे आर वार्म ओशन करंट्स. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो आंसर विल बी वन ओनली. यहाँ पे करेक्ट पूछा है, राइट. सो यू अंडरस्टूड ज्योग्राफी में कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यू रीड एंड रीड योर क्लास 11 एंड क्लास 12 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे. ओके, वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इकोनॉमिक क्वेश्चन, तो वी नो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा. इट सेज विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. इसने एक आइटम बताई और कैटेगरी बताई उसकी. अब यहाँ पे बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, व्हाट हाउ शुड योर ब्रेन वर्क इज, आपको दो चीज में डिवाइड करना है. कैपिटल होता क्या है? जो कैपिटल है दैट इज समथिंग जिसके ऊपर आपको फ्यूचर में रेवेन्यू या रिटर्न्स मिलेंगे, राइट. अब कैपिटल इज ऑफ टू टाइप. वन इज फिजिकल कैपिटल, वन इज योर फिजिकल कैपिटल में फिजिकल कैपिटल होता है. नेक्स्ट इज योर इंटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते. फॉर एग्जांपल आपका ब्रांडिंग हुआ कंपनी का, दैट इज योर इंटेंजिबल कैपिटल. नाउ फिजिकल कैपिटल में दिस इज योर टेंजिबल कैपिटल, राइट. दिस इज योर इंटेंजिबल कैपिटल. अब यूपीएससी में टेंजिबल और इंटेंजिबल पे भी आ रखा है क्वेश्चन, तो आपको वो पता होना चाहिए. जो फिजिकल कैपिटल है उसमें दो तरह के होंगे, दैट इज योर फिक्स्ड कैपिटल एंड अदर वन विल बी योर वर्किंग कैपिटल. आपका ये कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? आपने फॉर एग्जांपल लैंड खरीद लिया, दैट इज योर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर फिक्स्ड कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो इन दैट प्रोसेस, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है आपकी, टेक्सटाइल फैक्ट्री है, उसमें कॉटन यूज होता है, कॉटन हो गया, यार्न हो गया, सिल्क हो गया, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल. ठीक है, वो वर्क होता रहेगा, आपको बार बार उसको हर हफ्ता चेंज करना पड़ेगा, बट आप वो लैंड या फैक्ट्री हर हफ्ते चेंज नहीं कर रहे ना, दैट इज योर फिक्स्ड कैपिटल. ऐसे एग्जांपल ले लो प्रिंटर का. प्रिंटर इज योर फिक्स्ड कैपिटल, बट उसके अंदर जो पेपर जा रहा है दैट इज योर वर्किंग कैपिटल. सो बाय दैट कंसेप्ट यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. इज फार्मर का प्लो क्या हो गया? आप उसको फील्ड में यूज करते हो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसको बार बार चेंज नहीं करना, दैट इज नॉट योर वर्किंग कैपिटल, दैट इज योर फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है, ये फर्स्ट गलत हो गया. कंप्यूटर इज योर फिक्स्ड कैपिटल, यस, बाय दिस कंसेप्ट ओनली. यार्न यूज बाय द वीवर, इज इट योर फिक्स्ड कैपिटल? यार्न तो हर टाइम चेंज होता रहेगा ना, क्लोथ्स न्यू बनाने के लिए. एक बार क्लोथ बन गया, वो बेचा गया, तो यार्न दोबारा लेना पड़ेगा हमें, राइट. अगेन दिस इज योर वर्किंग कैपिटल, राइट. पेट्रोल गाड़ी इज योर फिक्स्ड कैपिटल. जो कार हो गया तो वो ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है. जो पेट्रोल है उसके अंदर आपको बार बार हर किलोमीटर पे या हर 100 किलोमीटर पे चेंज करना पड़ता है, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल. सो आंसर विल बी ओनली 2. नाउ यू विल से कि ये पार्ट आपने इकोनॉमी पढ़ लिया, बट दिस इज द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट जो आपने मे बी इग्नोर कर दिया हो. दैट क्वेश्चन मे हैव कम इन योर माइंड, राइट. अगेन आई विल से वन थिंग इज दिस इज अगेन फ्रॉम योर एनसीईआरटी. सी इकोनॉमिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2 इज एक्सप्लेन. और एक्सप्लेनेशन देखो, यार्न यूज बाय द वीवर, फार्मर प्लो, कंप्यूटर, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. डिट्टो वहां से कॉपी मारा यूपीएससी ने. तो बेसिक आपका फाउंडेशन में एनसीईआरटी ही रहेगा. उसके बाद आपके जो मल्टीपल टेस्ट है वगैरह जो होगा दैट विल कम, राइट. नेक्स्ट इज योर कंसीडर गवर्नमेंट स्कीम पे है. गवर्नमेंट स्कीम आर आल्सो फेवरेट ऑफ यूपीएससी. तो यूपीएससी इसमें क्या पूछ रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशन बीइंग अंडरटेकन अंडर एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी. It says it provides prophylactic calcium supplements for preschool children, adolescents and pregnant women. Okay, बाकी इसने बोला it runs a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth. It provides for periodic deworming to children and adolescents. It addresses non-nutritional causes of anemia with special focus on malaria, hemoglobinopathies, fluorosis, right? अब यहाँ पे अगर आपने एनीमिया बुक भारत पढ़ा है तो एक तो आपका कंसेप्चुअल है, एक तो ये नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू मी. व्हाई? आपको एनीमिया पता है व्हाई एनीमिया क्यों होता है? एनीमिया इज मोस्टली प्रेवलेंट इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड जिन्होंने अभी बर्थ दिया उनके ऊपर भी, और प्रेग्नेंट वुमेन में भी, एंड इन चिल्ड्रन. दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयरन. If it is because of lack of iron, why this statement that the government is providing calcium supplements?
आयरन की कमी में कैल्शियम सप्लीमेंट्स क्यों देने हैं? ये तो गलत नहीं हो गया? आयरन के लिए क्या दो, फॉलिक आयरन फॉलिक एसिड की जो आती है आपकी टैबलेट्स, वो देनी चाहिए ना। तो कंसेप्चुअली ओनली साइंस के बेसिस पे दिस इज गलत। इवन इफ आई डोंट नो अबाउट दिस स्कीम, मुझे पता लग गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। अब मुझे बाकी चीजें मालूम फॉर एग्जांपल नहीं पता है ना, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन, फॉर एग्जांपल दिस वन डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग हो गया, ये प्योरिटी डीवॉर्मिंग है, आई मे बी कंफ्यूज इन दिस। अगर मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट ही सॉल्व कर ली ना, तो आई विल नो कि हाँ अब करेक्ट के लिए ऑल करेक्ट तो नहीं हो सकता है ना। तो इसके अंदर यहाँ पे तो मैं आ गया, ओनली वन करेक्ट है या ओनली टू करेक्ट है या ओनली थ्री करेक्ट है। सी अब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो दैट इज वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट कि हाँ इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया, तो दिस कैन बी करेक्ट है ना। ऑल्सो अब देखो पीरियोडिक डीवॉर्मिंग और डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, अब ये भी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, तो आई थिंक सेकंड आल्सो हैज टू बी करेक्ट। तो ओनली वन भी करेक्ट नहीं होना चाहिए, या तो ओनली टू करेक्ट हो या तो ओनली थ्री करेक्ट होगा। 50% ऑप्शन में आ गया। अब आया 50% चांस कि मैं इसको करेक्ट करूंगा, राइट। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा नॉलेज यूज होता है। दैट एनीमिया मुक्त भारत में एक स्ट्रैटेजी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड 666 स्ट्रैटेजी। दैट इज कॉल्ड 6x6 स्ट्रैटेजी। दिस वाज इन न्यूज उस टाइम पे। यूपीएससी ऐसे ही पूछ सकती थी 666 स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स। इफ यू सी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस टाइम पे 6 बेनिफिशियरी, 6 इंटरवेंशन, 6 इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म्स, तो वहां पे प्रॉपरली मेंशन्ड है प्रोफिलेटिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, यहाँ पे उसने कैल्शियम लिख दिया था, है ना, वो हमने साइंस से सही कर दिया। डीवॉर्मिंग, अगेन डीवॉर्मिंग भी है यहाँ पे। बिहेवियर चेंज, अगेन डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग मेंशन्ड। टेस्टिंग ऑफ एनीमिया यूजिंग डिजिटल मीटर्स, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड, अगेन एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया, तो यहाँ पे डीवॉर्मिंग मेंशन्ड है, तो योर दिस वन थर्ड भी सही होता है। आंसर विल बी ओनली 3, आंसर विल बी ओनली 3। सी यहाँ पे आपने स्मार्ट वे समझना है। आपने साइंस की अप्रोच भी लगाई, एनीमिया तो आयरन के कारण होता है, वाई कैल्शियम। फिर आपने अंडरस्टैंड कि हाँ थोड़ा आपको नॉलेज है, 666 आपको स्ट्रैटेजी पता था, तो आप ये स्ट्रैटेजी सही कर पाए थे, ये आंसर ऑप्शंस। दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत टफ है ना। ये वहां पे आप जब एग्जाम सिचुएशन में पढ़ोगे ये और ज्यादा टफ लगेगा आपको। तो आपको कामली सोचना है इस चीज को कि मैं क्या अप्रोच से सोच सकता हूँ, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। एग्जामिनर पहले पूछना चाह रहा था डू यू नो एनीमिया इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयरन। अगर उसको यही नॉलेज नहीं तो सेकंड बाकी स्टेटमेंट तो पढ़ने का फायदा ही नहीं उसको, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज योर हिस्ट्री क्वेश्चन। सो आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इफ यू सी इन यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर, है ना। दिस क्वेश्चन शुड बी स्किप्ड एंड आई वुड सजेस्ट ऐसे क्वेश्चन आपको करने ही नहीं है। सो अगेन आई वुड नेवर सजेस्ट यू ये क्वेश्चन लीव करने हैं, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत स्मार्टली खेल सकते हो। आपको हमेशा याद रखना है दैट यूपीएससी में लेस इज मोर, लेस इज मोर मीन्स ये यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल अगर ज्यादा पढ़ोगे यूपीएससी में, बहुत ज्यादा सोर्सेस करोगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस वेरी लेस, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आप। बट अगर लेस पढ़ोगे और उसको ज्यादा ज्यादा रिवाइज करोगे तो आपका सिलेक्शन का चांसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। This may sound controversial, but that is actually true. Why? In this question, it says which of the following are Jaina texts. Nobody reads in detail कि Buddhist text, Jaina text कौन से हैं. Even if you are of that religion, you will still not really read such things, right? Even अब हिंदुइज्म में कितने एपिक्स हैं, कितने टेक्स्ट हैं, हमें उनका डिटेल नहीं पता रहता है। इवन आपको कोई भी टेक्स्ट है आपको उतना डिटेल नहीं पता रहता, बिकॉज एज अ स्टूडेंट यू कैन हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज, है ना। बिकॉज जो यूपीएससी एग्जाम दे रहा है ही हैज लाइक 21 की एज ब्रैकेट से लेके 32 होगा फॉर एग्जाम्पल जनरल का, है ना। तो उस एज ब्रैकेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। बट यूपीएससी ये नहीं चेक करा कि वो नॉलेज कितना जाता है, यूपीएससी ये चेक करा कि आपको उसका बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। तो दिस क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है नीति पारा करना, परीक्षित पर्वन, अवधन षटका, त्रिशक्ति लक्षणा महापुराणा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव आर जैना टेक्स्ट। अब यहाँ पे टेल यू एक चीज होती है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी होती है व्हेन यू ब्रेक द वर्ड्स एंड यू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल इफ योर नेम इज समथिंग, उसको आपको नाम को तोड़ के, उसके हो सकता है दो अलग अलग चीज में तोड़ोगे तो दोनों के अलग अलग मतलब होंगे, उनको ज्वाइन करके एक मतलब नाम बना आपका, करेक्ट। सिमिलरली हर एक जो वर्ड है इन योर लैंग्वेजेस, इन ह्यूमन लैंग्वेज, वो कहीं ना कहीं से 2 या 3 वर्ड्स को या जिनके अलग अलग मीनिंग है उनको जोड़ के बना होगा। सी आई डोंट नो कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ
मैंने लिटरली नहीं सुना, बट मुझे एक चीज क्लिक की यहाँ पे, दैट अवदना, आई हैव हर्ड ऑफ दिस, और मैंने इसको पता कहाँ पे पढ़ा है, एनसीईआरटी में। यू सी एनसीईआरटी में यहाँ जहाँ बुद्धिस्ट केव पेंटिंग की बात की है अजंता के अंदर, है ना, उसके अंदर इट हैज मेंशन द थीम ऑफ द पेंटिंग्स एंड इवेंट्स फ्रॉम लाइफ ऑफ बुद्धा, जटका एंड अवदनास। You see, some paintings such as Simhala Avadana, Mahajanaka Jataka, Vidur Pandra Jataka over the entire wall of cave. Again, Avadanas are related to Buddhism. Avadanas are related to Buddhism. It is in your Fine Arts NCERT class 11 की chapter number 4, page number 39. If you have old NCERTs, वहाँ पे I know Avadana. So this is a Buddhist text. This is a Buddhist text. So this comes has to be wrong. तो अगर third गलत है, your answer comes out to be 2 and 4. This may be one of the toughest question, but if you do that by such techniques, you can easily get 2 marks. जहाँ पे लोग जहाँ तो -0.67 ले रहे हैं या तो 0 ले रहे हैं. See, that is how you do. Less is more. इसका मेरा less is more से मैंने ये बताना था. मैंने NCERT पढ़ के I could have easily solved this question. नहीं तो आप कोचिंग में ज़्यादा टेस्ट लगाओगे, you do there, आपको लगेगा अपना कंटेंट कम है ना, which is most important for मुझे लोगों को होता है कंटेंट कम है मेरे पास. आप जितना कंटेंट है उसको रिवाइज नहीं करते, आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, वो इतना आपको हेल्प नहीं करेगा, राइट? जितना आपको करेगा रिवीजन विल हेल्प यू मोर, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन विद रेफरेंस टू इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स. मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम. मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स. बट द थर्ड स्टेटमेंट है ना, इट इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन तो. और दूसरा आपको पता होना चाहिए दैट रेयर अर्थ मेटल्स आर इन न्यूज. अभी भी न्यूज में इवन जो ग्रीनलैंड वाला इशू है, दैट इज आल्सो कवर्ड ऑन आवर चैनल. दैट ग्रीनलैंड, व्हाई यूएसए वांट्स टू बाय ग्रीनलैंड, बिकॉज ऑफ रेयर अर्थ ओनली. बिकॉज आइस मेल्ट होगा, उसके अंदर रेयर अर्थ पहुंच जाता है. तो रेयर अर्थ विल बी लाइक नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल गेम. हर किसी को रेयर अर्थ लेने, बिकॉज जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, बैटरीज, योर डिफेंस सेक्टर, हर एक में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, राइट? तो उस कॉन्टेक्स्ट में मोनाजाइट है. और मोनाजाइट हमारे जो थोरियम साइकिल है, इंडिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में थोरियम यूज करना चाहता है, उसके लिए मोनाजाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल. तो ये एक्चुअली जो दिस वन इज मोनाजाइट, दी आपको अगर आप न्यूज में ना ही पढ़ा हो, दिस इज आल्सो मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक ओनली, ज्योग्राफी वाला चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी सोर्सेज. दैट मोनाजाइट जो है, थोरियम इज मेनली ऑपरेटेड फ्रॉम मोनाजाइट एंड इट इज स्प्रेड अक्रॉस कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. तो ये इनके कोस्ट के ऊपर है, ठीक है. एंड इंडिया हैज लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ मोनाजाइट, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इसीलिए आपको काम मिलता है केरला एंड तमिलनाडु में, राइट? सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो उसको एलिमिनेट करके आपको इजीली 1, 2 and 4 आ जाता है, राइट? तो अगर आप ट्रिक लगाओगे तो आप यू विल सी कि हाँ यहाँ ओनली है, मैं इसको गलत कर देता हूँ. नहीं, आपको थोड़ा कंसेप्ट से देखना है और बेसिक नॉलेज, राइट? ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे यूपीएससी एग्जामिनर ने डेलिबरेटली आपको कंफ्यूज करने के लिए नेम्स दिए हैं. द क्वेश्चन इज, Anna, they are in Siberia and Nome in Alaska are few kilometers from each other. But when people are waking up and getting set for the breakfast in these cities, it would be different days. When it is Monday on Anandya, it is Tuesday in Nome. Which of the following statements are correct? See, I don't know कि ये cities का क्यों mention किया, because वो इस question को tough बनाना चाहते थे. He could have easily mentioned here. यहाँ पे 2 चीज आती है, रशिया, अलास्का इज ऑफ यूएसए की टेरिटरी, राइट? तो इसमें जो कंसेप्ट है, इट इज नॉट रिलेटेड टू दीज कंट्रीज, इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल डेट लाइन. एज यू सी यहाँ पे, इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल डेट लाइन. इंटरनेशनल डेट लाइन इज अ मैन मेड लाइन, ठीक है? वो जिगजैग लाइन है काइंड ऑफ. तो रशिया और अलास्का, इन दोनों के बीच में वो पड़ती है. तो यहाँ पे मतलब सिटीज मार्क्ड है, बट आई विल टेल यू यहाँ आइलैंड मार्क्ड है. बट इनको आपका जानना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट आई से व्हेन आई से कि अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके पीछे का कंसेप्ट पहले पढ़ो कि वो कंसेप्ट क्या था. अब इंटरनेशनल डेट लाइन में क्या होता है, इफ यू मूव वेस्टवर्ड, मतलब यहाँ मूव करोगे, तो आपको क्या होगा, आपका एक दिन आपका एक्सटेंड हो जाएगा, एक दिन प्लस हो जाएगा, ठीक है? 1 डे आपका प्लस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, अगर आप, ये अलास्का है यूएसए का, ये आपका रशिया है जो आपका साइबेरिया जिसके अंदर आता है. अगर आपका यहाँ संडे है, आपने यहाँ मूव करके, तो आपका 1 डे प्लस हो जाएगा, 1 डे. सिमिलरली अगर आप यहाँ से यहाँ मूव करके, आपका 1 डे माइनस हो जाएगा. दैट इज द कंसेप्ट. तो इट सेज व्हेन इट इज मंडे इन अनंद्यार, अनंद्यार कहाँ पे आपका, साइबेरिया मींस रशिया में. तो अगर यहाँ पे मंडे है, ठीक है, यहाँ पे मंडे है, तो इट इज ट्यूजडे इन नोम. एक्चुअली मैंने से कि यहाँ पे जब जाओगे माइनस हो जाएगा इस कंसेप्ट से. तो यहाँ -1 होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे संडे होना चाहिए,
right? So this statement is wrong conceptually. First statement is actually correct कि हाँ, when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. It is correct, right? So answer would be one only. अब इसको टफ कंसेप्ट है, इसको याद करने के लिए आप न्यूमोनिक्स यूज कर सकते हो. कभी कुछ टफ कंसेप्ट को आप याद कर न्यूमोनिक्स यूज कर सकते हो. इसमें व्हाट यू कैन डू इज दैट यहाँ पे एक स्टोरी से बिल्ड कर सकते. जैसे मैंने एक स्टोरी कहीं रीड की थी किसी टीचर का, दैट यहाँ पे फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर है ना. अभी आपका मन कर रहा है यू हैव टू सेलिब्रेट न्यू ईयर. तो आप क्या होगा, आप यहाँ वेस्ट पे क्रॉस कर जाओगे, यहाँ पे फ्लाइट लोगे, यहाँ क्रॉस करके तो आपका डे +1 हो गया. यहाँ 1 जनवरी है, आपने क्या किया, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया. यहाँ के लोग 31 दिसंबर में या देर वेटिंग फॉर न्यू ईयर, आपने जल्दी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया. फिर क्या हुआ, आप दोबारा वापस चले गए. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब 2 जनवरी हुई, यहाँ पे 1 जनवरी है, तो आपने साल में 2 बार न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया. तो आप ऐसे स्टोरी से क्या होगा दैट यूएसए वाले बंदे को पार्टी करने का मन है, ही इज गोइंग देयर, तो ऐसे वो इजीली सेलिब्रेट कर सकता है. तो रशिया से फिर वापस आके वो दोबारा न्यू ईयर करेगा. दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड स्टोरीज अराउंड टेक्निकल कंसेप्ट्स, राइट? तो दैट कैन आल्सो हेल्प यू. जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दिस. तो आंसर इज वन ओनली. एज यू सी यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन है मंडे, तो यहाँ संडे है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज योर ओके, कंसीडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स. अब जो इस क्वेश्चन है दैट जो 3 एयरपोर्ट मेंशन है, आपको एक पता होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है जो मेंस के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का कंसेप्ट क्या है. ग्रीनफील्ड इज जो बिल्कुल ही न्यू लैंड पे कंस्ट्रक्टेड है. ब्राउनफील्ड इज जो पुराना कोई एयरपोर्ट है या पुरानी कोई वहां पे इंफ्रा था, उसके ऊपर जाके बिल्ड किए, उसको डिमोलिश करके या उसको ऊपर रेनोवेट करके, राइट? सो आई नो यहाँ पे जो डोनियोपोलो एयरपोर्ट है कुशीनगरा, इफ यू डोंट नो दैट ना, आप थोड़ा सा गेस कर सकते थे दैट विजयवाड़ा इज अ वेरी ओल्ड सिटी एंड वेरी अर्बनाइज सिटी. ठीक है, वहां पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होना इज वेरी टफ. वहां पे जनरली ब्राउनफील्ड बनेगा बिकॉज ऑलरेडी अर्बनाइज्ड है ना. बट इतना मुझे पता है कुशीनगरा रिसेंटली बुद्धिस्ट सर्किट में इसको एयरपोर्ट मिला था. इसको इनॉग्रेटेड इन 2022, राइट? सो आई एम नॉट श्योर अबाउट वन, बट हाँ, वन इज अरुणाचल प्रदेश में, आई थिंक इट्स फर्स्ट एयरपोर्ट ऐसा कुछ है. तो वहां से आपको पता होना चाहिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वहां पे है. बट स्टिल यू वुड हैव गेस्ड कि यहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होना बहुत मुश्किल है. सो अगर आप थर्ड गलत कर देते, आंसर कुड हैव कम विद 1 and 2. सो आपको ये थिंकिंग पैटर्न हमेशा देखना है ना. दिस कैन हेल्प यू इन लाइक फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन करोगे, 2 या 3 में हेल्प कर देगा ना. इसको ओवरडू नहीं करना है, इसकी लिमिटेशंस है. आई कुड हैव इजीली गॉन रॉन्ग इन दिस, इससे अच्छा मैं स्किप कर देता इस क्वेश्चन को. बट अगर आपको लगता है दैट यू आर गुड इन दिस, यू कैन डू सच थिंग्स. तो हर चीज की एक लिमिटेशन है, दैट यू आल्सो हैव टू रिमेंबर. ओके, सी दिस क्वेश्चन, अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. इसके अंदर क्या है, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म reaches the earth, which of the following are possible effects on the earth? GPS and navigation system could fail, tsunamis could occur and equatorial regions, power grid could be damaged, intense aurora could occur over much of the earth, forest fires could take place over much of the planet, etc. So ये करेक्ट पूछ रहा है. यहाँ पे एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एलिमिनेशन में क्या देखना है आपको, जो अनरिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर फ्लेयर्स है, उससे जनरली क्या होता है, जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, हमारे जो कम्युनिकेशन इंफ्रा है इंडिया में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं कम्युनिकेशन के. तो सोलर फ्लेयर जो है, साइंस से सोलर फ्लेयर आते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, वो अर्थ की तरफ आए, तो अर्थ के जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो उसको इम्पैक्ट करेंगे, राइट? तो उसके अंदर इंटरफेरेंस करेंगे. तो यस, यहाँ पे जीपीएस को इम्पैक्ट कर सकते हो, पावर ग्रिड्स में कहीं ना कहीं यूज होते हैं. बट वो फॉरेस्ट फायर से कहीं ना कहीं, फॉरेस्ट फायर इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट, है ना. और ऑल्सो फॉरेस्ट फायर को टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द अर्थ. बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सारी अर्थ पे ही फॉरेस्ट फायर हो जाएंगे, है ना. दैट कैन आल्सो हैपन. तो 5th इज डेफिनेटली रॉन्ग. तो मैं देख लिया 5th इज रॉन्ग. सो आई एम लेफ्ट विद 1 और बी और सी ऑप्शन. आई नो 1 and 3 इज करेक्ट, है ना. आई नो 1 and 3 इज करेक्ट. सो 1 and 3 यही ऑप्शन बनता है एक्चुअली. स्टिल आई वुड हैव गॉन फॉर मोर एलिमिनेशन. तो मैं देख सकता था कि हाँ, सुनामीज का कोई रिलेशन नहीं है इनसे. तो 2 इज ऑल्सो रॉन्ग. सो आंसर विल बी सी ऑप्शन. सो आई होप सो हमने जो क्वेश्चंस करे, you are able to understand कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है. तो you have to understand less is more and एग्जामिनर के माइंडसेट्स पे, राइट? So this comes with experience that I have given this much attempts. So I have experience that how to at least learn के right guidance से किसी को कैसे बताया जा सकता है कि you can at least score 10 to 15 marks more. जो स्टिक हो गया आप 90 की रेंज में, 80 की रेंज में, you will be stuck that for next 2 or 3 attempts अगर आप same strategy करोगे. If something is not working for you, you should at least seek help. You should at least seek help from anyone
जो आपको एक राइट गाइड कर दे पाते, या किसने ये चीज को ऑलरेडी क्रैक कर लिया, या ऑलरेडी उसको समझ आ गया कि हाँ दिस कैन हैपन विद लिमिटेशंस आल्सो, आई कैन आल्सो गो रॉन्ग इन दिस थिंग्स। बट हाँ, आपको ये चीज देखनी है कि हाँ यूपीएससी एग्जाम का माइंडसेट क्या है। अगर आप इसी लेक्चर को ही लिख लोगे तो यही आपके नेक्स्ट प्रीलिम्स में के अंदर एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स तो हेल्प करेगा आपको, इस थॉट से आप पेपर सॉल्व करोगे तो, राइट। एंड इफ यू वांट दैट इसी बेसिस पे दैट यू वांट अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, वी आर आल्सो स्टार्टिंग सच प्रोग्राम दैट विल बी अ वेरी होलिस्टिक प्रोग्राम। इट विल बी कॉल्ड पीटीपी, प्रीलिम्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय मेंटोर सर। इट विल हैव ऑल 3 कंपोनेंट्स। जो आपका प्रीलिम्स है उसके अंदर जो हमारा स्मार्ट एमसीक्यू सॉल्विंग होगा, डेली एमसीक्यू सॉल्विंग होगा विद डिस्कशन, है ना। एंड यू विल आल्सो हैव सीसेट। सीसेट विल बी टेकन बाय IIM ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सेल्ड इन दिस फील्ड, और वो आपको नॉट जस्ट कंसेप्ट्स बताएंगे, दे विल टेल यू हाउ टू स्मार्टली सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू स्मार्टली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। इफ यू हैव सम शॉर्टकट्स इन दैट, अगर आपको लगता है उसके अंदर स्ट्रेटजी क्या है, वो आपको बहुत अच्छे से बनाएंगे। और देयर क्वेश्चंस आर वेरी वेल फाउंड, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट से लेकर उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम को इंटीग्रेट किया है इस प्रीलिम्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। ऑल्सो जो अनदर नेग्लेक्टेड है, जो लोग अलग से सेल करते हैं, दैट इज करंट अफेयर। यू विल हैव होलिस्टिक कवरेज ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर, एंड आई थिंक करंट अफेयर्स की स्मार्ट करंट अफेयर सीरीज है, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड ऑन दिस चैनल, यू शुड गो थ्रू दैट। एंड उसके अंदर यू विल अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट गिविंग कंटेंट, वी आर आल्सो गिविंग कंटेंट प्लस जो MPYQ आ सके हैं, प्लस एक्सपेक्टेड जो उस करंट अफेयर के ऊपर क्वेश्चन होंगे, so that you are exam ready। आपको रटना नहीं है, आपको एग्जाम रेडी होना है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको you will have mentorship by selected candidates as well as expert mentors, which was promised and delivered in our MTP 2.0, which was our mains training program. With that same philosophy, we'll continue in our prelims training program. I hope this lecture was helpful to you, and we see many of you students in our program. And with that, I take your leave. Thank you.